Hi, dear friends. I hope all of you are safe and staying at home only. I, Prashant Lakhani, welcomes you once again in the world of SYJC Economics, Chapter 2, Part 7. Dear friends, till our last session, we have discussed about utility analysis. There is consumer's behavior. As a consumer, when we go to market to buy something, how do we behave? To understand our behavior, we need to understand one word, and that is utility. The capacity of a commodity to satisfy a human want. Basically, it is of 5 types, and we have covered 9 different features of utility. After that, we have started with one topic, that is explain the relationship between total utility and marginal utility. When total utility increases but at a diminishing rate and marginal utility decreases. When total utility is at highest level, marginal utility is 0, that is saturation point. In the end, when total utility decreases, marginal utility becomes negative. There is a great relationship between total utility and marginal utility. In our last session, we started with most important answer of this chapter for 8 marks, and that is state and explain law of diminishing marginal utility with its assumptions. We have explained the law, other things remain constant. बाकी की पूरी दुनिया ठहर चुकी है, थम चुकी है, रुक चुकी है, बोले तो दुनिया गई खड्डे में. When the consumer consumes more and more units of the same commodity in a continuous and quick manner, he gets lesser and lesser utility from it. अगर कोई एक बंदा एक ही चीज बार बार लगातार यूज करेगा तो थोड़े वक्त के बाद वो थक जाएगा, पक जाएगा, उब जाएगा. And after that, we have explained one schedule and diagram. तो हम 8 मार्क के आंसर के लिए जहां पे अपने को 2 पेज भर के लिखना होता है, we have filled 1.5 page. In my last session, I repeated it again and again कि in microeconomics, you should not start or you should not complete any law without assumptions. ये एक बेसिक रूल है कि कोई भी इकोनॉमिक्स का लॉ या थियरी पढ़ते वक्त आपको assumptions लिखने ही होंगे. अगर क्वेश्चन में assumption वर्ड मेंशन हुआ है तो हम उसको डिटेल एक्सप्लेन करेंगे. अगर assumption वर्ड के बारे में क्वेश्चन इज मम, क्वेश्चन इज साइलेंट, तो हम उसके हेड पॉइंट्स लिख कर आएंगे. फ्रेंड्स, इन आवर क्वेश्चन clearly they have mentioned the word with its assumptions. तो पूरा ये जो कायदा है, ये पूरा जो थियरी है कि अगर एक कंज्यूमर एक की एक चीज बार बार कंज्यूम करता है तो थोड़े वक्त के बाद उसको इस चीज से मिलने वाली जो एक्स्ट्रा खुशी होती है, एक्स्ट्रा जो यूटिलिटी होती है, एडिशनल यूटिलिटी, वो डिमिनिशिंग, कम होते जाएगी. It depends on 6 different assumptions. So today our topic is assumptions to law of diminishing marginal utility. Let's begin with our first assumption, and that is continuous consumption. It is assumed that the consumer consumes more and more units in a continuous and quick manner of the same commodity without any time interval. Otherwise, mu does not decrease. अगर कोई एक कंज्यूमर
एक की एक चीज बार बार लगातार कंज्यूम करेगा विदाउट एनी टाइम इंटरवल, कोई गैप लिए बगैर, तो ही वो उस चीज से थक जाएगा, पक जाएगा, उब जाएगा। तो मार्शल ये मान के चलेगा, इट इज अज्यूम्ड है, मार्शल ये मान के चलेगा कि एज अ कंज्यूमर अगर आप कोई चीज बार बार लगातार यूज करोगे विदाउट टाइम इंटरवल, तो ही आपका एमयू कम होगा, आपको उसमें से कम खुशी मिलेगी। अदरवाइज एमयू डज नॉट डिक्रीज, आपकी खुशी कम नहीं होगी, बढ़ जाएगी। लेट मी रिवाइज सम ऑफ द पर्सनल एग्जाम्पल्स। जब पूरणपुरी पे पूरणपुरी दी गई, अगर मेरी सासू माँ मुझे बोलती कि कुमार अभी आपने 3 पूरणपुरी खाई है, अब आप रेस्ट कीजिए, शाम को मैं और गरम गरम पूरणपुरी खिलाऊंगा, तो फिर शाम को मैं 5 पूरणपुरी और मुंह में ठूस देता, क्योंकि बीच में गैप आ गया, रेस्ट मिल गया। 3 बार कबीर सिंह मूवी देखने के बाद अगर मैं घर चला गया होता और 2 दिन के बाद आके वापस कबीर सिंह मूवी देखता, तो फ्रेंड्स मेरा उस मूवी में इंटरेस्ट कम नहीं होता। वो प्रीति नाम की जो हीरोइन का कैरेक्टर था, उसमें मेरा इंटरेस्ट कम नहीं होता, बढ़ जाता, क्योंकि बीच में टाइम गैप आ गया और घर पे मार भी नहीं पड़ती वो अलग से। तो अगर आप एक की एक चीज बार बार लगातार कंज्यूम करोगे तो ही एमयू कम होगा। अगर आप उसमें टाइम गैप ले लेते हो, इंटरवल ले लेते हो, तो आपका इंटरेस्ट कम नहीं होता है, बढ़ जाता है। फ्रेंड्स, अगर मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू सोचना शुरू करूं, अगर कॉलेज में 6 लेक्चर होते हैं, 3 लेक्चर के बाद अपने को ब्रेक होता है 20 मिनट्स का, अपने को सबसे ज्यादा इंतजार जिस बात का होता है ना फ्रेंड, वो उस 20 मिनट्स के ब्रेक का होता है। हम सबसे ज्यादा एंथुसियास्टिक और एक्साइटेड उस 20 मिनट्स के ब्रेक के लिए होते हैं। अपना इंटरेस्ट लेक्चर में नहीं है जितना 20 मिनट्स के ब्रेक में है। फ्रेंड्स, कितना भी मूवी इंटरेस्टिंग हो ना, उसमें ये लोग इंटरवल जरूर रखते हैं। मूवी कितना भी इंटरेस्टिंग हो, वो इंटरवल जरूर रखेंगे। और जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सीन आता है वहीं पर इंटरवल। तो ये जो चीज होती है कि बीच में टाइम गैप ले लिया, इंटरवल ले लिया, अगर आपने इंटरवल ले लिया तो एमयू कम नहीं होगा, बढ़ेगा। इसलिए मार्शल ये मान के चलेगा, इट इज अज्यूम्ड दैट द कंज्यूमर कंज्यूम्स more and more units of the same commodity in a continuous and quick manner without any time interval. Otherwise, MU does not decrease. That was our first point, continuous consumption. Now, our second point is uniform commodities. That is homogeneous products, homogeneous commodities. यूनिफॉर्म कमोडिटीज, होमोजीनियस कमोडिटीज का मतलब होता है विच आर सेम इन साइज, शेप, कलर एंड टेस्ट। इट इज अज्यूम्ड दैट द कंज्यूमर कंज्यूम्स द कमोडिटीज विच आर सेम इन साइज, शेप, कलर एंड टेस्ट। अदरवाइज एमयू डज नॉट डिक्रीज, इट इंक्रीजेस। अगर कोई कंज्यूमर एक सरीखा प्रोडक्ट बार बार इस्तेमाल करेगा तो उसका इंटरेस्ट कम होगा, उसको कम खुशी मिलेगी और तो ही एमयू कम होगा। अगर उसमें साइज, शेप, कलर या टेस्ट चेंज हो जाएगा तो फिर उसका इंटरेस्ट कम नहीं होगा, बढ़ जाएगा। एक सिंपल सा एग्जांपल समझा रहा हूं फ्रेंड्स। अगर 3 पूरणपुरी खाने के बाद चौथी पूरणपुरी जो साली लेकर आई, जिज्जू एक मेरी तरफ से, मेरे हाथों से खिलाऊं, अगर वो हार्ट शेप में होती तो ये दिल मांगे मोर। अगर वो चौथी पूरणपुरी हार्ट शेप में होती तो ये दिल मांगे मोर। फ्रेंड्स, एक सिंपल मतलब समझाऊं। अगर आप कबीर सिंह जैसा मूवी 3 बार देखने के बाद किसी और एक मूवी पे चले जाते हो, कोई एक और मूवी देख लेते हो और फिर वापस आके कबीर सिंह को कंटिन्यू करते हो, तो अपना जो इंटरेस्ट है, अपना जो एमयू है, मार्जिनल यूटीवी, वो कबीर सिंह में कम नहीं होगा, बढ़ जाएगा। एक बहुत सिंपल सी बात समझाऊं तो बहुत सालों पहले फ्रेंड्स मर्डर नाम का एक मूवी आया था।
और उसी दिन एक और मूवी रिलीज हुआ था, मस्ती, ग्रेट ग्रैंड मस्ती का दादा, मस्ती पार्ट 1। फ्रेंड्स, जो भी लोग मर्डर मूवी के लिए बहुत एक्साइटेड थे, जिन्होंने मर्डर मूवी बार बार देखा हो, पर एक बार अगर वो मस्ती मूवी देख के आते थे वापस, तो मल्लिका में उनका इंटरेस्ट कम नहीं होता था, बढ़ जाता था। क्योंकि मस्ती मूवी पूरा कॉमेडी टाइप मूवी था, जहां पे 3 हीरो एक ही हीरोइन से प्यार करते हैं और तीनों की बीवियां घर पे होती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था, सेम डे दोनों रिलीज हुए थे। मर्डर के चर्चे काफी हुए, पर मस्ती ज्यादा हिट हुआ फ्रेंड्स। तो कहीं ना कहीं अगर मैं 3 बार कबीर सिंह देखने के बाद कोई और मूवी देख के वापस आता हूं, तो मेरा इंटरेस्ट कम नहीं होगा, बढ़ेगा। तो it is assumed that the consumer consumes more and more units of the same commodity which are same in size, shape, color and taste. Otherwise, MU does not decrease. मेरी खुशी कम नहीं होगी, बढ़ेगी अगर साइज, शेप, कलर कुछ भी चेंज हो गया तो। After that, our third point is cardinal measurement. फ्रेंड्स, ये बात इसके पहले एक बार आ चुकी है। It is assumed that utility can be measured in terms of numbers 1, 2, 3, 4 ऐसे numbers. Otherwise, utility cannot be measured. MU cannot be measured. मार्शल ये मान के चलेगा कि हम अपने सेटिस्फेक्शन को, अपनी खुशी को, अपने प्लेजर को, अपने यूजफुलनेस को, अपनी यूटिलिटी को, अपने मार्जिनल यूटिलिटी को 1, 2, 3, 4 ऐसा नंबर में गिन सकते हैं। ऐसा वो मान के चलेगा। क्योंकि अगर हम इसको नंबर में नहीं गिना तो आप यूटिलिटी, सेटिस्फेक्शन को कभी कंपेयर ही नहीं कर पाओगे। एक छोटा सा एग्जांपल से क्लियर कर दूं, अगर मैं अपने EU और MU को नंबर नहीं देता हूं, तो हाउ टू नो कि 5वां जो शो मैंने देखा कबीर सिंह का, रात को 12 से 3 फोकट वाला शो, उसमें मेरा MU 0 पे आ गया, मेरा TU 28 पर था। हाउ टू कैलकुलेट, अगर मैं यूटिलिटी को नंबर नहीं दे रहा हूं तो हाउ टू कैलकुलेट दिस? दैट इज वाई मार्शल हैज अज्यूम्ड दिस कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, अदरवाइज यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड। वरना तो यूटिलिटी मेजरमेंट होगा ही नहीं, तो फिर MU का कंपैरिजन पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए मार्शल ये अज्यूम करके चलेगा। दैट इज आवर थर्ड पॉइंट। आवर फोर्थ पॉइंट इज रैशनल बिहेवियर। रैशनल बिहेवियर, इट इज अज्यूम्ड दैट द कंज्यूमर्स शुड हैव normal economic behavior at the time of consumption, otherwise MU does not decrease. Friends, यहाँ पे let me clarify the word rational, that is normal, natural. Mathematical एक word होता है rational number and irrational number. जो नंबर नॉर्मली समझ में आते हैं, दैट इज रैशनल नंबर, रियल नंबर, रैशनल नंबर, मैथमेटिकल। मार्शल यहाँ पे ये मान के चलेगा कि एज अ कंज्यूमर वी शुड हैव नॉर्मल इकोनॉमिक बिहेवियर, अदरवाइज MU डज नॉट डिक्रीज। बिलीव मी फ्रेंड्स, ये जो वर्ड है ना, नॉर्मल इकोनॉमिक बिहेवियर, आप बोलेंगे सर अचानक से कौन सा वर्ड लेकर आ गया? फ्रेंड्स, बिहेवियर बहुत तरह के होते हैं। एक बात समझाऊं, अगर आप कॉलेज में 2 लेक्चर के बीच में बाहर कहीं फ्रेंड्स के साथ खड़े हैं, तो बीच बीच में दे ताली, दे गाली, तो दैट इज अवर फ्रेंडली बिहेवियर, दैट इज अवर फ्रेंडली बिहेवियर। पर क्या हम घर पे जाके ये बिहेव कर सकते हैं? हाय डे टू, दे ताली, दे गाली?
वहां पे तो डैडी यहाँ से आए, हम यहाँ से निकल लेंगे। तो दैट इज अवर फैमिली बिहेवियर। फ्रेंड्स, एक होता है पोलाइट बिहेवियर, एक होता है एरोगेंट रूड बिहेवियर। अपने जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, एकदम पोलाइटली बात करते थे, जी मैडम जी, जी मैडम जी। तो दैट इज पोलाइट बिहेवियर। अब भी जो अपने नरेंद्र मोदी है, मित्रों, इट्स एरोगेंट रूड बिहेवियर, यस। पावरफुल बिहेवियर, स्ट्रॉन्ग बिहेवियर। तो फ्रेंड्स, बिहेवियर बहुत तरह के होते हैं। इसमें ये एक नया आ गया, नॉर्मल इकोनॉमिक बिहेवियर। इसका आसान मतलब, वेयर इज माई बेनिफिट, वो आओ, बाकी सब जाओ। फ्रेंड्स, हम बहुत स्वार्थी होते हैं, बहुत बहुत स्वार्थी होते हैं। और कोई भी इंसान इतना स्वार्थी रहेगा, द आंसर इज यस, नॉर्मल इकोनॉमिक बिहेवियर। और अगर आपका बिहेवियर नॉर्मल इकोनॉमिक नहीं है तो आपका एमयू कम नहीं होगा, बढ़ेगा। दैट इज नॉट एज क्रेजीनेस। साइको कैसे से बोलते हैं, हटेला, येड़ा हटेला, साइको, क्रेजी। कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल से क्लियर करो, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स। फ्रेंड्स, कुछ सालों पहले एक मूवी आया था, हम आपके हैं कौन। फ्रेंड्स, मैंने ये मूवी पहली बार थिएटर में देखा और मैं पक गया था। नॉर्मल गुजराती और मारवाड़ी और पंजाबी लोगों की शादी होती है ना, तो वो शादी आप ज्यादा एंजॉय करोगे। मूवी में उससे ज्यादा कुछ नहीं था। पर उस टाइम पे मीरा रोड की एक 21 साल की लड़की ने मरीन लाइन्स के लिबर्टी थिएटर में जाके ये मूवी 21 टाइम्स देखा था, 21 टाइम्स। साइको केस। ऐसा उस मूवी में क्या था कि आप मीरा रोड से मरीन लाइन्स थिएटर में जाओगे देखने 21 टाइम्स। क्रेजीनेस। हम अगर कितना भी अच्छा मूवी लगे तो 1 या 2 बार देखें, फिर उसमें इंटरेस्ट कम हो जाएगा। और उसका इंटरेस्ट कम नहीं हो रहा था, उसका इंटरेस्ट कम नहीं हो रहा था। फ्रेंड्स, कुछ सालों पहले तुमसा नहीं देखा नाम का एक मूवी था। उसमें रिया मिर्जा एक हीरोइन थी, रिया मिर्जा, और उसका एक भाई दिखाया था जिसको टाई कलेक्ट करने का एक आदत था। वो टाई पहनता नहीं था, सिर्फ टाइज को कलेक्ट करता था, एक्यूमुलेट करता था। मूवी में एक सीन है जहाँ पे वो कपबोर्ड में टाई गिनने बैठता है, तो एक टाई कम होती है, टाई कम होती है, तो टेरेस पे चढ़ जाता है सुसाइड करने के लिए। दैट इज क्रेजीनेस। ये रहा हटेला, साइको केस। दैट इज क्रेजीनेस। तो फ्रेंड्स, ये जो सोच है, अगर आप क्रेजी बिहेवियर वाले हो, साइको केस में आते हो, ये दे हटेले, तो फिर आपका इंटरेस्ट कम नहीं होता है। लेकिन अगर आप नॉर्मल बिहेवियर में आते हो तो डेफिनेटली आपका इंटरेस्ट कम हो जाएगा, डेफिनेटली कम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स, एक बात आती है, मार्शल ये मान के चलेगा, मार्शल ये मान के चलेगा कि वी शुड हैव नॉर्मल इकोनॉमिक बिहेवियर, नॉर्मल इकोनॉमिक बिहेवियर, अदरवाइज एमयू डज नॉट डिक्रीज। अगर आप साइको केस में आते हो, ये हटे हो, तो आपका इंटरेस्ट कम नहीं होगा और भी बढ़ेगा। दैट वाज आवर 4th पॉइंट, रैशनल बिहेवियर। आवर 5th पॉइंट इज reasonable size. It is assumed that the commodities used by the consumers should neither be too big nor be too small. Otherwise, MU cannot be measured and it will not decrease. जो भी कमोडिटी आप और मैं यूज करेंगे, मार्शल ये मान के चलेगा कि जो भी कमोडिटी का साइज होगा वो नॉर्मल रहेगा, रीजनेबल साइज, ज्यादा बड़ा भी नहीं, नाइदर नॉर, ये भी नहीं वो भी नहीं, नाइदर टू बिग नॉर टू स्मॉल। लेट मी गिव यू एग्जांपल कि वो ऐसा क्यों मान के चलेगा। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, कलिंगर, तरबूज, वाटरमेलन। अब उसका साइज काफी बड़ा है,
क्या हम कभी ये सोच पाएंगे कि मैंने पहला कलिंगर खाया, दूसरा कलिंगर खाया, कलिंगर पे कलिंगर कलिंगर, अरे भाई इंसानों में आता हूँ, रावणों में थोड़ी आता हूँ। फ्रेंड्स मेरा हाइट बॉडी देखो, अगर आज घर पे एक कलिंगर आएगा, पूरा फैमिली बैठ के खाएगा तो भी कल के लिए बचेगा। शायद पूरा फैमिली कल खाए तो भी परसों के लिए बचे। सोसाइटी में बोलना पड़े छोटे बच्चों को, चलो भाई आओ, और बड़ी बहनों को भी लेकर आओ। लॉजिकली अगर मैं आपको समझा पाऊं तो लॉजिकली कलिंगर की साइज काफी बड़ी है फ्रेंड्स। तो ये कोई कंज्यूमर के लिए पॉसिबल नहीं है कि पहला कलिंगर खाया, दूसरा कलिंगर खाया, कलिंगर पे कलिंगर मुंह में ठूस दिया। अरे नॉट पॉसिबल। इसलिए इतनी बड़ी साइज अगर है कमोडिटी की, अगर कोई कमोडिटी की साइज इतनी बड़ी है तो उसका मेजरमेंट नॉट पॉसिबल। नॉट टू स्मॉल लाइक मूंगफली, नट्स, सिंगदाना। सपोज अगर हम कभी मूंगफली खाते हैं तो क्या ये सोचना पॉसिबल है कि आप उसके दाने गिनोगे कि पहला मूंगफली का दाना खाया 2 यूनिट का सेटिस्फेक्शन मिला, दूसरा मूंगफली का दाना खाया 2 यूनिट का सेटिस्फेक्शन मिला? अरे नॉट पॉसिबल। एक बात तो समझ लो फ्रेंड्स, अपना इंडियन कल्चर है, मूंगफली जैसी चीज हम अपने पैसों से कभी खाते ही नहीं है। मुझे आपका नहीं पता, मैं तो कभी अपने पैसों से नहीं खाता था। फ्रेंड ने लिया होता है, मुट्ठा डाल के बाय बाय निकल गई। दूसरी बात, ज्यादातर केस में हम मूंगफली खाते वक्त कुछ और भी कांड करते रहेंगे। सिर्फ मूंगफली खाएंगे, उसके दाने गिनेंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अगर अपने में से कोई बुक पढ़ते हुए मूंगफली खाता है तो यूं खाएगा। अगर मूवी देखते हुए खाएगा तो मूवी चल रहा है और यूं खत्म हो गया। अब मुझे बताओ, हमने इसमें दाने किधर गिने कि कितने मूंगफली के दाने पेट में गए तो कितना सेटिस्फेक्शन आया? इट्स नॉट पॉसिबल। दैट इज वाई मार्शल हैज अज्यूम्ड दिस कि द कमोडिटीज consumed by the consumer, the size of the commodities used by the consumers should neither be too big nor be too small. इतनी ज्यादा बड़ी साइज या इतनी छोटी साइज का कमोडिटी नहीं लेना, वरना आप उसका यूटिलिटी, एमयू, टीयू कुछ भी मेजर नहीं कर पाओगे। और जब मेजर ही नहीं कर पाओगे तो एमयू कम हुआ, हाउ टू नो दैट? दैट वाज आवर फिफ्थ assumption, that is reasonable size. Dear friends, our sixth assumption is no change in taste and preference of the consumers. No change in taste and preference of the consumers. It is assumed by Marshall that there should be no change in choice of the consumers. Otherwise, MU does not decrease. मार्शल ये मान के चलेगा कि एज अ कंज्यूमर आप अपनी चॉइस कभी बदलोगे ही नहीं, क्योंकि अगर आपने अपनी चॉइस बदल दी तो उस चीज में आपका इंटरेस्ट कम नहीं होगा, बढ़ेगा। मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल से आपको समझाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल से। फ्रेंड्स, अगर आज कोई नया मूवी आए, कोई नया गाना आए तो आपको और मुझे पसंद आता है, पर अपने पेरेंट्स को वो पसंद नहीं आता है। कितना भी अच्छा मूवी हो, कितना भी अच्छा गाना हो, तो भी वो लोग उसमें गलतियां ढूंढेंगे। ये कोई स्टोरी हुआ, ये कोई एक्टिंग हुआ, ये कोई डांस हुआ, ये क्या फालतूगिरी है? आपको पता है ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आपके डैडी के दिमाग में कोई पुरानी हीरोइन दिमाग में बस चुकी है, रेखा जब से तुझको देखा फिर और कुछ नहीं देखा, तो फिर कैटरीना कैफ, प्रियंका चोपड़ा कितना भी अच्छा काम करे, उनको पसंद नहीं आएगा उनका काम। अगर मम्मी के दिमाग में कहीं पर ऋषि कपूर बसा हुआ हो तो रणबीर कपूर कितना भी अच्छा काम करे, उनको पसंद नहीं आएगा। पर अपने साथ ये नहीं होता है फ्रेंड्स। अपने साथ ये क्यों नहीं होता है, अब वो मैं समझाऊं कि अपने साथ ये क्यों नहीं होता है। अपनी हीरो हीरोइन की जो फेवरेट हीरोइन की चॉइस है ना, हीरो हीरोइन की जो चॉइस है, वो हर 1-2 मूवी के बाद, हर 6 महीने बाद चेंज हो जाती है। जब हम छोटे होते हैं, अगर आप बॉयज है, छोटे थे, तो उस वक्त आपको शाहरुख खान पसंद था, लेकिन धीरे धीरे करके बाद में हीरोइन पसंद आने लगती है। और शुरुआत में प्रियंका चोपड़ा पसंद थी, दीपिका पादुकोण, और बाद में फिर सनी लियोनी पे बात आ जाती है।
जब लड़कियां छोटी थी, अगर उनको कोई हीरो पसंद आता, पहले शाहरुख खान, सलमान खान, फिर वरुण धवन पे बात आ जाती है, फिर कार्तिक आर्यन पे बात आ जाती है। 1 या 2 मूवी हिट होते हैं, अपनी चॉइस चेंज। इसलिए बॉलीवुड मूवीज में अपना इंटरेस्ट कम नहीं होता है, बढ़ता है, पर अपने पेरेंट्स का इंटरेस्ट कम हो चुका है, क्योंकि उन्होंने अपने दिलो दिमाग में अपने जो बेस्ट फेवरेट हीरो हीरोइन है उनकी चॉइस को कभी बदला ही नहीं, उनकी चॉइस को कभी उन्होंने बदला ही नहीं। तो मार्शल ये मान के चलेगा कि इफ यू आर कंज्यूमिंग द कमोडिटीज without any time interval in a continuous and quick manner, which are of the same size, shape, color and taste. If utility can be measured in terms of numbers with your rational behavior and reasonable size, and if you are not changing your choice, taste and preference, so definitely after some consumption your MU will be diminished. You will get lesser and lesser utility from it. तो these were the 6 assumptions. Friends, अगर ये 6 assumption fulfill होते हैं तो ही law of DMU is valid. अगर किसी सिचुएशन में ये 6 assumption गलत हो जाएंगे तो अपने आप law of DMU will become invalid. तो when the consumer consumes more and more units of the same commodity in a continuous and quick manner, with cardinal measurement, with rational behavior, with reasonable size, with no changing choice, then only he will get lesser and lesser utility from it. तो ये अपना 8 मार्क का एक सबसे अच्छा आंसर कंप्लीट हो गया, that is state and explain law of DMU, diminishing marginal utility, with its assumptions. Friends, please write it down all these things in your notebook, please. जितना आप लिखेंगे उतना आपको ये सब चीजें ज्यादा समझ में आती जाएगी. And both these answers are very important from board exam point of view for 8 marks. Please take care of yourself and soon I approach you again. Friends, F5 JC के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं. प्लीज इन्फॉर्म दिस थिंग to your brothers, sisters and friends and relatives also. Thank you so much. Take care.